آیا بائبل مقدس کو کھولیں۔ بائبل مقدس میں سے یہودا کا عام خط، اس کی 11ویں سے 13ویں آیت تک۔ یہودا کا عام خط، اس کی 11ویں سے 13ویں آیت تک۔ کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے، ان پر افسوس کہ یہ قائن کی راہ پر چلے اور مزدوری کے لیے بڑی حرص سے بلعام کسی گمراہی اختیار کی اور کورہ کی طرح مخالفت کر کے ہلاک ہوئے۔ یہ تمہاری محبت کی ضیافتوں میں تمہارے ساتھ کھاتے پیتے گویا دریا کی پوشیدہ چٹانیں ہیں۔ یہ بے دھڑک اپنا پیٹ بھرنے والے چرواہے ہیں۔ یہ بے پانی کے بادل ہیں جنہیں ہوا اڑا لے جاتی ہے۔ یہ پت جھڑ کے بے پھل درخت ہیں جو دونوں طرح سے مردہ اور جڑ سے اکھڑے ہوئے ہیں۔ یہ سمندر کی پرجوش موجیں ہیں جو اپنی بے شرمی کی جھاگ اچھالتی ہیں۔ یہ وہ آوارہ گرد ستارے ہیں جن کے لیے اب تک بے حد تاریکی دھری ہے۔ کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ یہودا کے عام خط کے تفسیری مطالعہ کے سلسلے میں آج ہمارا 5واں لیسن ہے۔ اگر ہم یہودا کے خط کو ایک سرسری نظر سے دیکھیں تو یہودا کے خط کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ یعنی اگر ہم اس کو پریچ کرنا چاہیں تو اس کے 3 طریقے ہیں اس کو پریچ کرنے کے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ ہم ایک ہی عبادت میں 40-45 منٹ میں اس خط کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے ہم 15-15 منٹ میں 45 منٹ میں یہ پورا کا پورا خط پڑھا سکتے ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم 3 کنزیکٹیو سنڈیز جو ہیں، یعنی مسلسل طور پر 3 اتوار کی سیریز چلا کر ہم پہلی 7 آیات اور پھر 8 سے 16 آیات اور پھر 17 سے 25 آیات کا مطالعہ کر سکتے ہیں اور کروا سکتے ہیں اپنی اپنی کلیسیاؤں میں۔ یا اگر آپ اس کو ایک اچھی تفسیر کے طور پر پیش کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کو 10 حصوں میں تقسیم کریں جو ہم کر رہے ہیں۔ 10 حصوں میں تقسیم کرنے کے لیے میں آپ کی مدد کر رہا ہوں کہ ہم چھوٹی چھوٹی آیات لے لیں جو نیچرل ڈویژن میں ہو، جو ایک فطری تقسیم ہو، اور اس کو ہم 10 اتواروں میں اپنے چرچ میں یہودا کے خط کی تفسیر کے سلسلے میں ہم ایک سیریز چلا سکتے ہیں۔ اگر ہم یہودا کے خط کو ایک عام نظر سے دیکھیں تو اس کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ یعنی پہلا حصہ جو ہے پہلی 7 آیات پر مشتمل ہے، جس میں پہلی 2 آیات میں معیاری ایمان، اور اگر آپ 7 آیات کا نام دینا چاہیں تو وہ ہوگا مسیحی معیاری ایمان یا معیاری مسیحی ایمان۔
پہلی 2 آیات میں ایک معیاری مسیحی ایمان کی تصویر کشی کی ہے، 3 اور 4 آیت میں دفاع ایمان سے متعلق آگاہ کیا گیا ہے، اور 5ویں سے 7ویں آیت تک انتباہ ایمان یعنی مسیحی ایمان سے متعلق ہمیں وارننگز دی گئی ہیں۔ پھر 8 سے 16 آیات دوسرا حصہ ہوگا جو جھوٹے اساتذہ کے کردار سے متعلق ہے جو ہمارے ایمان پر حملہ آور ہو سکتے ہیں، اور ان کی تقسیم 8ویں سے 10ویں آیت تک۔ پہلا حصہ جھوٹے اساتذہ کی شناخت جو ہم نے پچھلے اپنے سبق میں کیا تھا، پھر 11ویں سے 13ویں آیت تک جھوٹے اساتذہ کی تشبیہات جو آج ہم کر رہے ہیں، اور پھر 14ویں سے 16ویں آیت تک جھوٹے اساتذہ کی عاقبت یعنی ڈیسٹینیشن آف دا فالس ٹیچر۔ اگر ہم اس خط کے تیسرے حصے میں جانا چاہتے ہیں تو وہ 17ویں سے 25ویں آیات تک ہوگا، اور اس کا مضمون ہوگا معیاری ایماندار، اور اس کو بھی تقسیم کریں گے 17 سے 19 آیت تک ایمانداروں کی حوصلہ افزائی، پھر 20ویں سے 21 آیت میں ایمانداروں کا معیار، اور پھر 22ویں سے 23ویں آیت میں ایمانداروں کی خدمت، اور پھر 24ویں اور 25ویں آیت میں ایمانداروں کی برکات۔ آج ہمارا 5واں سبق ہے جو یہودا کے عام خط کی 11ویں سے 13ویں آیت میں ہے، اور اس کا جو عنوان ہے، جو بڑا مضمون ہے تینوں آیات کا 11، 12، 13، وہ ہے جھوٹے اساتذہ کی تشبیہات۔ جھوٹے اساتذہ کی تشبیہات۔ پچھلے 4 اسباق میں ہم نے ایک ایسے مسیحی ایمان کی تصویر دیکھی ہے جو مقدس یہودا کے ذہن میں ہے۔ مقدس یہودا جو ہیں وہ نہ صرف ایک معیاری مسیحی ایمان کی تصویر دے رہا ہے، بلکہ اس ایمان کے اوپر حملہ آور لوگوں کی شناخت بھی کرا رہا ہے کہ ہمارے مسیحی ایمان پر جو حملہ آور لوگ ہو سکتے ہیں وہ کون کون سے ہو سکتے ہیں، اور پچھلے سبق میں ہم نے ان کی شناخت سے متعلق سیکھا تھا، اور اب ہم 11ویں سے 13ویں آیت میں مقدس یہودا کے ذہن میں جو تشبیہات ہیں، جھوٹے اساتذہ کی جو تصویر ہے، وہ ہمیں دکھانا چاہتا ہے تاکہ ہم یہودا کے ذہن کو پڑھ سکیں اور اپنے ایمان کا تحفظ کر سکیں۔ 11ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں، یہاں لکھا ہوا ہے کہ ان پر افسوس۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ مقدس یہودا کن کا ذکر کر رہا ہے؟ کن پر افسوس؟ وہ کہتا ہے ان پر افسوس، اور یہاں جو ان ہے اس سے مراد 4، 5، 6 اور 7ویں آیات ہیں، کیونکہ 4تھی آیت میں ایسے لوگ جو مقدس یہودا کے ذہن میں ہیں جن کو ان کہا گیا ہے، ان کے بارے میں مقدس یہودا 4تھی آیت میں یوں بیان کرتے ہیں کہ بعض ایسے شخص چپکے سے ہم میں آ ملے ہیں جن کی اس سزا کا ذکر قدیم زمانے میں پیشتر سے لکھا گیا تھا۔ کون ہے یہ لوگ؟ یہ بے دین ہیں اور ہمارے خدا کے فضل کو شہوت پرستی سے بدل ڈالتے ہیں، اور ہمارے واحد مالک اور خداوند یسوع مسیح کا انکار کرتے ہیں۔ اور مزید تفصیل کے لیے مقدس یہودا نے کہا ہے کہ ایسے لوگوں کی کوئی معافی نہیں ہے جو 4 کام کرتے ہیں۔ پہلا کام کہ وہ بے دین ہے، وہ مسیحی مذہب کی رسپیکٹ نہیں کرتے، ان کے نزدیک مسیحی ایمان کوئی ایمان نہیں ہے، ان کا اپنا ہی ایمان اپنا ایمان ہوتا ہے، وہ کبھی بھی مسیحی ایمان پر کھڑے نہیں ہوئے، وہ بے دین ہے۔ بے دین کون ہوتا ہے؟ دہریہ۔ وہ دہریے ہیں، وہ ایتھیسٹ ہیں جو خدا کے وجود کو ہی نہیں مانتے۔ ایسے لوگوں کو مقدس یہودا
बड़ी संजीदगी से ले रहे हैं और वो कहते हैं कि ये ना सिर्फ बेदीन है बल्कि अगर ये मसीहियत में दाखिल होते हैं तो गलत तालीम देते हैं। वो ये कहते हैं कि मसीही ईमान जो है वो खुदा का फजल है, मसीही निजात जो है वो खुदा का फजल है, लिहाजा खुदा के फजल को वो मिसअंडरस्टैंड करते हैं, गलत समझते हैं और गलत ही समझाते हैं। वो कहते हैं हम जितने मर्जी गुनाह करें खुदा का फजल हमारे लिए काफी है। सो मुकद्दस पौलुस रसूल इसको डांटते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। क्या हम गुनाह करते रहें कि फजल ज्यादा हो? ऐसा हरगिज नहीं है। ना सिर्फ ये बेदीन है और खुदा की तालीम को बगाड़ते और तोड़ते और मरोड़ते हैं, बल्कि ये वाहिद मालिक यानी पुराने अहदनामे के खुदा का इनकार करते हैं और नए अहदनामे में खुदावंद यीशु मसीह का इनकार करते हैं। सो ये चार काम कर रहे हैं। इन पर अफसोस, ऐसे लोगों पर अफसोस। क्यों अफसोस क्यों है? अफसोस इसलिए है कि बाइबल मुकद्दस की तालीम के मुताबिक खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, लेकिन ये वो लोग हैं जिन्होंने हलाकत को अपनी मंजिल बना रखा है। ये वो लोग हैं जो बचने के लिए बिल्कुल रजामंद नहीं है, ना ये तौबा करते हैं, ना ये निजात हासिल करते हैं। इन्होंने अपनी जिंदगी को जहन्नम के सुपुर्द कर रखा है। और बाइबल मुकद्दस के ईमानदार ऐसे लोगों को बचाने की कोशिश करते रहते हैं। ऐसे लोग जो खुदा से दूर हैं, बेदीन हैं, दहरिए हैं, खुदा की तालीम को नहीं जानते और अगर थोड़ा बहुत जानते हैं तो वो तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं और उसके बाद ये खुदा और उसके बेटे का इनकार करते हैं। ऐसे लोगों को ईमानदार हमेशा बचाने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन अगर वो नहीं बचता तो फिर ईमानदार ऐसे लोगों पर अफसोस करते हैं। यहां अफसोस जो यूनानी जबान का लफ्ज है वो बहुत ही खूबसूरत है और उसके लिए एक तशरीह भी है। अफसोस के लिए ऊआई लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। ऊआई ऐसा सदमा है, ऊआई यूनानी जबान में ऐसा सदमा है जो किसी अजीज की मौत के बाद होता है। कोई शख्स जब मर जाता है, वो शख्स जिसको आप प्यार करते हैं, अगर वो मर जाए तो उसका जो सदमा है उसको ऊआई कहते हैं यूनानी जबान में, यानी उस पर अफसोस। इतना अफसोस कि काश ये बच जाता, काश ये ना मरता, काश इसकी ट्रीटमेंट हो जाती, काश इसका इलाज हो जाता। मुकद्दस यहूदा ने इनको बचाने की कोशिश की है, लेकिन आखिर में मुकद्दस यहूदा ने ऊआई कह दिया है कि मुझे बहुत अफसोस है कि मैं इनको बचा नहीं सका, क्योंकि ये बेदीन है, ये खुदा के फजल को शाबत परस्ती में बदल डालते हैं, ये खुदा और उसके बेटे का इनकार करते हैं। जो ऐसा करेगा उसकी डेस्टिनेशन, उसकी मंजिल आतिशे जहन्नम है, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। जो ऐसे लोगों को मुकद्दस यहूदा बचाने की कोशिश करता है, लेकिन ना बचे तो फिर वो कहता है इन पर अफसोस, काश ये ना मरते, काश ये दोजक में ना जाते, क्योंकि इन्होंने दोजक को अपना ओढ़ना बिछौना इस जिंदगी में ही बना लिया है। जिन्होंने फैसला किया है कि हम अपनी जिंदगी में खुदावंद यीशु मसीह को तस्लीम नहीं करेंगे, उन पर अफसोस। फिर आगे जिन पर अफसोस कर रहा है उनसे मुतल्लिक 9 तशबीहात मुकद्दस यहूदा ने पेश की हैं। 11वीं, 12वीं और 13वीं आयत में जिन पर मुकद्दस यहूदा को अफसोस हुआ है उनके लिए मुकद्दस यहूदा ने बाइबल मुकद्दस में से और तारीख में से
और साइंस में से, एस्ट्रोलॉजी में से, बॉटनी में से बहुत सारी मिसालें देकर उनकी तशबीहात पेश की हैं। और इन 9 तशबीहात को आज हम देखेंगे कि झूठे असातिज़ा जिन पर मुक़द्दस यहूदा अफसोस कर रहा है, उनको किन 9 चीजों से तशबीह दे रहा है। नंबर 1, इन पर अफसोस कि ये कायन की राह पर चले। नंबर 1, कायन। इन पर अफसोस जिन्होंने फैसला किया है कि उनकी जिंदगी कायन से मुशाबत रखेगी, जिन्होंने फैसला किया है कि वो कायन की पैरवी करेंगे। कायन से मुतल्लिक आप सीखना चाहते हैं तो पैदाइश 4 बाब में आपको इससे मुतल्लिक मिलेगा, खासतौर पर 3री और 5वीं आयत में। कायन जो है आदम और हवा का पलौठा बेटा है। अपने पेशे के एतबार से ये किसान है, और जब खुदा ने दोनों भाइयों को हदिया लाने के लिए कहा है तो कायन भी लाया है और हाबिल भी लाया है, लेकिन कायन का हदिया कबूल नहीं हुआ। क्यों कबूल नहीं हुआ? उसका जवाब हमें मिलता है इब्रानियों के खत के 11वें बाब की 4थी आयत में, कि जो पैदाइश 4 बाब में कायन का हदिया कबूल नहीं हुआ, उसका जवाब इब्रानियों के मुसन्नफ ने 11वें बाब की 4 आयत में दिया है, और वो ये है कि वो बद नीयत था, क्योंकि उसकी नीयत बद थी। सो यहां पर बताया यह गया है कि कायन जो है ये बद नीयत था। इसकी नीयत खुदा के लिए साफ नहीं थी। ये खुदा के साथ रियाकारी करता है, खुदा के साथ इसका रिश्ता दुरुस्त नहीं है। ये अपने ताल्लुकात में खुदा के साथ ठीक नहीं है। ये अपनी जात को प्यार करता है, खुदा की कोई इसके नजदीक कदर व मंजिलत नहीं है। और फिर अगर आप पहला यूहन्ना उसका 3 बाब और उसकी 12वीं आयत देखें तो उसके मुताबिक इसको कहा गया है कि वो शरीर में से है जिसके काम बुरे हैं। यानी कायन का जो ताल्लुक है मुकद्दस यूहन्ना ने इब्लीस के साथ जोड़ दिया है कि वो खुदा का बंदा नहीं है, वो उस शरीर से है। मुकद्दस यूहन्ना ने इस हवाले में पहला यूहन्ना का आम खत और उसका 30वां बाब और उसकी 12वीं आयत में मुकद्दस यहूदा ने जब कायन के साथ तशबीह दे दी है उन असातिज़ा को जिन पर वो अफसोस कर रहा है, जिन्होंने फैसला किया है कि वो कायन के नक्शे कदम पर चलेंगे, उनका तर्ज जिंदगी कायन की तरह होगा। वो अपने भाई के खिलाफ काम करेंगे, अपने भाई के साथ जालसी करेंगे, वो खुदा के साथ रिश्ते में नहीं होंगे बल्कि अपना रिश्ता इब्लीस के साथ जोड़ेंगे। इन लोगों ने कायन की सी राह इख्तियार की है, इन पर अफसोस। और ये बात हो रही है उन असातिज़ा के लिए जो झूठे असातिज़ा हैं, जो बेदीन हैं, खुदा के फजल को शहवत परस्ती में बदलते हैं, हमारे वाहिद खुदा और उसके बेटे खुदावंद यीशु मसीह का इनकार करते हैं। ये कायन की राह पर चल पड़े हैं और इन्होंने कायन की सी जिंदगी बसर करने का फैसला किया है। इनकी आकबत आतशे जहन्नम है। इन पर अफसोस। उसके बाद हम 11वीं आयत में आगे देखते हैं, ये कायन की राह पर चले और मजदूरी की राह के लिए बड़ी हिर्स से बलाम किसी गुमराही इख्तियार की। दूसरी तशबीह जो है वो बलाम के साथ दी है ऐसे लोगों की जो झूठे असातिज़ा हैं। बलाम जो बाऊर का बेटा बलाम है, ये हमें इस्तिस्ना 23वें बाब की 4 आयत में मिलेगा। और फिर दूसरे पतरस ने दूसरे बाब की 15वीं आयत के मुताबिक ये नारास्ती की मजदूरी को पसंद करता है। और फिर यहूदा 11वीं आयत के मुताबिक ये लालच और हिर्स का शिकार है, ये लालच और हिर्स में मुब्तला है।
सो ये बलाम जो है ये लालच और हिर्स करता है। ये जो लालच और हिर्स है, इसके लिए जो यूनानी जबान में लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो एक्सुखो थैसान। सो ये जो यूनानी जबान का लफ्ज है जो लालच के लिए इस्तेमाल किया गया है, वो कि इसकी प्रोनाउंसिएशन काफी मुश्किल है, लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है कि अपने टैलेंट को या अपनी बरकत को बिजनेस का वसीला बनाना, अपने टैलेंट को, अपनी बरकत को जो खुदा ने मुझे दी है उसको बिजनेस का वसीला बनाना। और आज क्या हो रहा है? आज जितना टैलेंट हम खुदा को बेचते हैं उतना किसी को नहीं बेचते। आज चर्च में ढोलकी बजाने वाला भी पैसे लेता है, चर्च में ऑर्गन बजाने वाला भी पैसे लेता है। खुदा की बरकत जो हमने हासिल की हुई है उसको हम खुदा के लिए बिजनेस करते हैं। यह बलाम की सी तालीम है। बलाम को खुदा ने जो बख्शिश दी थी वो थी कि किसी को बरकत देगा तो बरकत मिलेगी, किसी को लानत देगा तो वो लानत मिलेगी, चाहे वो गैर अकवाम का नबी है। लेकिन गैर अकवाम के नबी को भी खुदा ने बरकत दी हुई थी और उस बरकत को उसने बिजनेस बना लिया हुआ था। आज अगर कन्वेंशनों पे बड़े बड़े स्पीकर्स को बुलाया जाता है तो वो पहले कहते हैं कि मुझे 20,000 दे जो, 30,000 दे जो मेरा किराया, फिर मैं कन्वेंशन पर बोलने के लिए आऊंगा। आज बहुत बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने खिदमत को बिजनेस बना लिया है और दिया खुदा ने हुआ है, ये टैलेंट खुदा ने दिया हुआ है। हम अपनी बरकत को बिजनेस बना के बैठे हुए हैं। और यहां जो लालच और हवस के लिए यूनानी जबान का लफ्ज है वो है खुदा की बरकत को बिजनेस बना लेना। ऐसा लालच, ऐसी हवस यानी नाजायज नफा कमाना, और ये बलाम किसी तबीयत और तरबियत है। ऐसे लोग आज भी हैं और हमें नजर आते हैं। मकासवा 2:14 में बलाम की तालीम को चैलेंज कर दिया गया है कि बलाम की तालीम गलत है। गिनती 24 से 28वें बाब तक बलाम की सारी स्टोरी हम सीख सकते हैं। गिनती 31 बाब की 8वीं से 16वीं आयत में हम ये देख सकते हैं कि बलाम ही है जिसने कौम इसराइल को बाल की परस्तिश के पीछे लगा दिया था कि वो बाल की परस्तिश करें। सो बलाम जो है वो जेंटाइल प्रॉफिट है, उसने खुदा की बरकत को बिजनेस बना लिया है। सो आज मुझे और आपको अगर खुदा ने बरकत दी है चर्च में खिदमत करने की या खुदा की खिदमत करने की, तो मेरी आपसे दरखास्त है कि बलाम की सी तालीम पर अमल ना करें। आप खुदा के लिए काम करके देखें, खुदा आपको छप्पर फाड़ कर देगा। खुदा आपको कहते हैं छत फाड़ कर देता है। खुदा हमें बरकत देता है अगर हम खुदा के लिए काम करते हैं। और अगर हम अपना रिवार्ड यहां ही ले लेते हैं कि 500 रुपए में एक इबादत में हारमोनियम बजा दिया या ढोलकी बजा दी 1000 रुपए में, तो ये आपने रिवार्ड ले लिया है, आपने पादरी साहब से ले लिया, खुदा से नहीं लिया। खुदा से कुछ नहीं मिलेगा। खुदा से उसको मिलेगा जो खुदा के लिए काम करेगा। जो पादरी के लिए काम करता है वो 500-1000 में फारिग हो जाता है, लेकिन खुदा के पास छोटे नोट नहीं होते। खुदा बड़े बड़े काम करता है। सो मेरी इल्तमास है, अगर खुदा ने आपको ब्लेस किया है तो बलाम के से शख्स ना बने बल्कि मसीही बने और खुदा की खिदमत करें। बलाम किसी गुमराही इख्तियार की और कोरा की तरह मुखालफत करके हलाक हुए। कोरा की तरह मुखालफत करके हलाक। कोरा कौन है? अगर आप कोरा को देखना चाहते हैं तो ये गिनती की किताब उसके 16वें बाब की पहली 35 आयात में इसकी कहानी मिलेगी। और ये जो शख्स है इससे मुतल्लिक आप सीखेंगे इसके पीछे स्टोरी क्या है। स्टोरी यह है कि जब मूसा ने कहानत के फराइज किसी को देने थे तो कहानत के फराइज देने के लिए उसने अपने भाई हारून और उसके खानदान का इंतखाब किया और लावियों को ये कहानत के फराइज दे दिए जो हैकल में किया करेंगे। लेकिन जो कोरा है ये हैकल में क्वार के इंतजामात किया करते थे।
یہ ہیکل میں کوائر یعنی ساز اور آواز کے ساتھ خدا کا کام کرتے تھے، اور جب ابلیس آتا ہے تو کئی دفعہ بیچ میں سے ہی آ جاتا ہے۔ اور یہ جو کورہ ہے، جب اس نے دیکھا کہ کہانت کے فرائض تو چلے گئے ہیں ہارون کے پاس، تو انہوں نے 2 شخص اور ساتھ ملائے اور یہ 3 لوگ ہو گئے۔ بعد میں انہوں نے اور شخص ساتھ ملائے، 250 اور آ گئے۔ سو انہوں نے خدا اور موسیٰ کے خلاف پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا کہ جی ہم کیوں نہیں کہانت کے فرائض انجام دے سکتے، ہم کیوں نہیں کاہن بن سکتے، ہم کیوں نہیں کہانت کے فرائض سر انجام دے سکتے۔ تو انہوں نے موسیٰ کو نہیں تسلیم کیا۔ موسیٰ نے جب ان کو بلایا کہ آؤ بات کرتے ہیں، کوئی کمپنسیٹ کر دیتا ہوں میں، تو یہ نہیں آیا۔ پھر خدا نے ان تینوں کو زمین کے سپرد کیا، یعنی زمین پھٹی اور یہ زمین کے سپرد کیے گئے، یعنی وہ زندہ درگور ہو گئے۔ مخالفت کیا ہے کہ ہیں یہ کلیسیائی لوگ ہی ہیں، یہ کوار کے انتظامات کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کورہ کے مزامیر بھی ہیں، زبوروں میں جائیں تو یہ آگے لکھا ہوا ہے کورہ کے لیے مزامیر جو اس نے بجائے ہیں۔ اس کی جو نسل ہے وہ کوار کو لیڈ کرتی رہی ہے، لیکن بیچ میں ہی کلیسیائی لوگ ہوتے ہیں جو پوزیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں اور پادری کے خلاف ہو جاتے ہیں کہ جو ہمیں خزانچی بناؤ، ہمیں ٹریئرر بناؤ، ورنہ ناراضگی ہو جائے گی۔ سو ایسے کلیسیائی نظام خراب کرنے والا شخص خدا کو پسند نہیں ہے۔ خدا نے جہاں آپ کو رکھا ہے وہاں ہی رہیں اور جو آپ کو دیا وہی کام کریں۔ اگر خدا کی مرضی ہوگی تو وہ آپ کو اچھی پوزیشن دے دے گا، اگر خدا کی مرضی نہیں ہے تو پھر اس مرضی پر قائم رہیں جس پر خدا نے آپ کو رکھا ہوا ہے۔ سو کورہ جو ہے پوزیشن کے لیے چرچ کے نظام کے خلاف ہو گیا ہے، اور کورہ اور اس کے 2 ساتھیوں کو زمین نگل گئی، اور اس کے بعد اس کے 250 ساتھیوں کو آگ نے بھسم کر دیا۔ سو یہ قائن کی طرح ہے اور پھر بلعام اور کورہ کی طرح ہے۔ اس کے بعد اب مقدس یہودا جو ہے وہ ایک اور سمت پر چل پڑا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو تمہاری محبت کی ضیافتوں میں تمہارے ساتھ کھاتے پیتے وقت گویا دریا کی پوشیدہ چٹانیں ہیں۔ پہلے اس کا جو کانٹیکسٹ ہے اس کو چیک کر لیں۔ کانٹیکسٹ کیا ہے؟ کانٹیکسٹ یہ ہے کہ ابتدائی صدی میں جب مسیحی ایماندار عبادت کرتے تھے، چاہے وہ شام کی ہوتی چاہے وہ دوپہر کی ہوتی، وہ اپنا اپنا کھانا لے کر آتے تھے، اور جب وہ عبادت کر لیتے تو وہ کھانا چنا جاتا اور سارے بیٹھ کے اس کھانے میں شامل ہوتے، اور اس کو وہ کہتے تھے یہ اگاپے میل ہے، جس کو محبت کی ضیافت کا نام دیا ہے۔ یہاں پر لکھا ہے کہ محبت کی ضیافتوں میں محبت کی ضیافت کا نام دیا ہے۔ سو اب یہ جو لوگ ہیں، یہ جو فالس ٹیچر ہیں، یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ گھر سے سوچتے ہیں کہ آج اتوار ہے اور ہم چرچ میں جاتے ہیں اور وہاں ہم جا کے کھائیں گے پیئیں گے اور لوگوں کے ساتھ ہنسی مذاق کریں گے اور پھر ہم واپس آ جائیں گے۔ ان کا ذہن دعا کرنا نہیں ہے، ان کا ذہن عبادت کرنا نہیں ہے، بلکہ ان کے ذہن میں کلیسیا میں ہنسی مذاق کرنا اور کلیسیا میں کھانے کھانا تھا۔ محبت کی ضیافت میں چلے جاتے تھے، اور جب محبت کی ضیافت میں یہ چلے جاتے تھے تو کیا ہوتا تھا، یہ وہاں خواتین کے ساتھ لوگوں کے ساتھ مذاق کرتے، اپنی پارٹی بازی کرتے، اپنے آپ کو بڑا عالم فاضل شو کرتے اور اپنی لیڈرشپ چمکاتے اور لوگوں کو گمراہ کرتے۔ ایسے لوگوں کو بتایا گیا ہے یہ لگتے ہیں جیسے یہ دوست ہیں، لگتا ایسے ہے جیسے یہ کلیسیائی ہمدرد ہیں، لگتا ایسے ہے جیسے یہ ہماری مدد کے لیے آئے ہیں، لیکن اصل میں یہ پوشیدہ چٹانیں ہیں۔ پوشیدہ چٹان کیا ہوتی ہے؟ آپ ٹائٹینک کو جانتے ہیں۔ ٹائٹینک 1912 میں پوشیدہ چٹان کی وجہ سے تباہ ہوا تھا، کیونکہ یہ جو
पोशीदा चट्टानें हैं, ये समंदर की किसी जगह पे होते हैं, और जहाज जब चलते हैं, बहरी जहाज जब चलते हैं, तो अगर जहाज इनके साथ टकरा जाए तो जहाज का जो पेंदा है वो टूट जाता है और जहाज में पानी चला जाता है और वो जहाज गर्क हो जाता है, जो 1912 में टाइटैनिक के साथ और बाद में कई ऐसे जहाजों के साथ हुआ। जो पोशीदा चट्टानें हैं उन्होंने जहाजों को तबाह किया। और ये जो है पोशीदा चट्टानें हैं जिन्होंने बहुत सारे लोगों के ईमान के जहाज को गर्क कर दिया हुआ है। और मुकद्दस पौलुस रसूल ने थिमोथियुस के नाम पहला खत लिखते हुए पहले बाब की 20वीं आयत में उसने 2 अशखास से मुतल्लिक बयान किया है कि उनके ईमान का जहाज गर्क हो गया। कैसे हुआ? किसी पोशीदा चट्टान ने उसको हिट किया और ये दोनों अशखास अपने ईमान से हाथ धो बैठे, यानी इनके ईमान को किसी फॉल्स टीचर ने हिट किया और ये अपने ईमान से फारिग हो गए। सो यहां बताया गया है कि फॉल्स टीचर जो होते हैं, जो झूठे असातिज़ा होते हैं, जो मियारी तालीम नहीं देते, वो ईमानदारों के जहाज को गर्क कर देते हैं और वो अपने ईमान से हाथ धो बैठते हैं। फिर उसके बाद आगे 5वीं जो सिमली है वो है ये बेधड़क अपना पेट भरने वाले चरवाहे हैं। ये बेधड़क, ये उन असातिज़ा से मुतल्लिक तालीम दी जा रही है जो लगता तो है कि वो बड़े आलम फाजल हैं, लगता तो है कि हमारे दोस्त हैं और हमारी ही तरह बाज शख्स हमारी ही तरह आके मिल गए हैं। लिखा हुआ चुपके से आके मिल गए हैं, यानी हमारे ही जैसे हैं वो। उन्होंने क्या किया है कि वो कलीसिया को तबाह कर रहे हैं और उनकी मिसाल बेधड़क पेट भरने वाले चरवाहे हैं, जिनकी तस्वीर हिजकिय्याह नबी ने 34वें बाब की 8वीं से 10वीं आयत में बयान की है। ऐसे चरवाहे जो भेड़ों के रूप में भेड़िए हैं, वो अपनी ही भेड़ों को फीड करने की बजाय, उनको खुराक देने की बजाय खुराक बना रहे हैं। अपनी भेड़ों को खुराक देने की बजाय उनको अपनी खुराक बना रहे हैं। सो ये वो चरवाहे हैं जो अपना पेट भरने के लिए चरवाहे बन गए हैं। और बहुत सारे आज मजहबी रहनुमा जिनका मकसद कलाम पेश करना नहीं होता, और वो क्या करते हैं, गलत किस्म के नकाब पढ़ देते हैं, गलत किस्म की तालीम देते हैं। कलीसिया को खुश करने के लिए वो अपना काम करते हैं। मकसद उनका खुदा की खिदमत नहीं होता, मकसद उनका अपने पेट को भरना होता है। और वो अपना शुमार हिजकिय्याह 34 बाब में जरूर कर लें, क्योंकि मुकद्दस यहूदा ने ऐसे लोगों को तंबीह की है कि ऐसे लोगों की आकबत आतिशे जन्म है जिन्होंने खुदा की खिदमत को अपने पेट भरने को, यानी उनका पेट उनका खुदा है, वो खुदा को खुदा नहीं समझते। ऐसे लोगों के लिए कलाम मुकद्दस में 2 बड़े हवाले हैं। और आज मैं उन तमाम खुदाम को, पासबानों को जो खुदा की खिदमत नहीं कर रहे बल्कि अपने पेट के लिए खिदमत कर रहे हैं, उनके लिए 23 ज़बूर और यूहन्ना की इंजील का 10वां बाब मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जरूर पढ़ें, ताकि आपकी खिदमत जो है वो अपने लिए नहीं बल्कि खुदा के लिए हो जाए। हम अपने पेट भरने के लिए काम ना करें। फिर उसके बाद ये बेपानी के बादल हैं, ये मीटरोलॉजी है। मीटरोलॉजी होता है महकमा मौसमियात वाले। महकमा मौसमियात वाले जो है वो ये बताते हैं कि बारिश कब होगी, कितनी होगी, कैसी होगी, किधर से आएगी। ये सारी मीटरोलॉजी का इल्म है जो मुकद्दस यहूदा को उस वक्त मालूम था जब वो खत लिख रहा था। आज मौसम के हालात जो है हमें इल्म होता है, हमारे मोबाइल टेलीफोन पर है, इंटरनेट पर है, और हमें मौसमियात का पता है। लेकिन ये बात हो रही है 2000 साल पहले की, जब मुकद्दस यहूदा जो है वो मीटरोलॉजी यानी मौसमियात की बात कर रहा है। वो क्या कर रहा है कि ये बेपानी के बादल हैं। अब ये बेपानी के बादल, अब देखें, अगर आप इस्तिस्ना की किताब और उसका 32वां बाब और उसकी दूसरी आयत देखें
تو وہاں پر کلام اور اس کی تعلیم کو بارش اور شبنم کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے. اس کا مطلب ہے کہ خدا کی تعلیم اور شبنم جو ہے یہ سیراب کرتی ہے بارش کی طرح. یہ کہاں سے آتی ہے؟ بادلوں سے. بارش کہاں سے آتی ہے؟ بادلوں سے. یعنی یہ جو بادل ہیں ان کو ان خدام سے تشبیہ دی گئی ہے جو بے پانی کے بادل ہیں. یعنی ان کے پاس خدا بھی نہیں ہے, خدا کا کلام بھی نہیں ہے اور خدا کی تعلیم بھی نہیں ہے. یہ بے پانی کے بادل ہیں. ان کے پاس خدا کا کلام نہیں ہے, ان کے پاس معاشرے کی باتیں ہیں, ان کے پاس حادثات ہیں, ان کے پاس اور بہت سا علم ہے, لیکن یہ خدا کے کلام کی بات نہیں کرتے کیونکہ ان کے پاس کلام ہے ہی نہیں ہے. کیونکہ بارش جو ہے, اوس جو ہے, شبنم جو ہے, یہ خدا کا کلام ہے. اور یہ خدا وہ ہے جن کو بے پانی کے بادل کہا گیا ہے. یہ ایسے خادم ہیں جو خدا کے کلام کی بات نہیں کرتے بلکہ اپنا سفر نامہ سنا دیتے ہیں یا اپنے خاندان کی باتیں سنانا شروع کر دیتے ہیں. یہ خدا کا کلام پیش ہی نہیں کرتے یا کلیسیائی تجربات سنانا شروع کر دیتے ہیں. ایسے خدام کو مقدس یہودا نے رد کر دیا ہے کیونکہ یہ وہ خادم ہیں جن کے پاس خدا کا کلام نہیں ہے. یہ بے پانی کے بادل ہیں. میٹرالوجی یعنی موسمیات کے مطابق اگر فلسطین کو ہم دیکھیں اس وقت جب مقدس یہودا خط لکھ رہے تھے تو اس وقت فلسطین کا زیادہ حصہ جو تھا وہ ڈراؤٹ یعنی خشک ہوا کرتا تھا. اور اگر کبھی اس خشک حالی میں یا خشک سالی میں بادل نظر آتا تو لوگ خوش ہو جاتے تھے. جب صحرائی جگہ ہوتی ہے اگر کوئی بادل نظر آ جائے تو لوگ خوش ہوتے ہیں. اور کیا ہوگا؟ کیا بارش آنے والی ہے. بادل آتا ہے تو وہ ڈھول ڈمکے لے کر باہر آ جاتے ہیں. اور کیا ہوتا ہے؟ کبھی تو بادل جو ہے وہ بارش لے آتے ہیں, لیکن کچھ ایسے بادل ہوتے ہیں جن میں بارش نہیں ہوتی. تو وہ جب بارش نہیں ہوتی تو ہوا آتی ہے تو ان کو اڑا لے جاتی ہے. اور یہاں لکھا ہوا ہے کہ وہ بے پانی کے بادل ہیں جنہیں ہوائیں اڑا لے جاتی ہیں. یعنی ایسے بادل ہمیشہ صحراؤں کو مایوس کرتے ہیں. ایسی جگہ کو یعنی کلیسیا جو ہے خادم کو توقع کر رہی ہے کہ خادم آج کلام سنائے گا. کلیسیا یہاں بیٹھی ہے کہ خادم آج کلام سنائے گا, کیونکہ اس کے پاس کلام نہیں ہے تو وہ اپنے گھر کی باتیں سنا کے چلا جاتا ہے. ہوا آتی ہے تو اڑا لے جاتی ہے اور کلیسیا بھوکی کی بھوکی رہ جاتی ہے. یہاں مقدس یہودا جو ہے وہ بہت قریب سے اس میٹرالوجی کو جانتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ وہ خادم ہیں جن کے پاس کلام نہیں ہے, تعلیم نہیں ہے. پھر اس کے بعد یہ پت جھڑ کے بے پھل درخت ہیں جو دونوں طرح سے مردہ اور جڑ سے اکھڑے ہوئے ہیں. اب یہ دیکھیں کیا ہے, یہ پت جھڑ کے بے پھل درخت ہیں جو دو طرح سے مردہ. اب یہ باٹنی کی بات ہے. آج ہمیں باٹنی سے پتہ چلتا ہے کہ باٹنی کیا ہے, لیکن مقدس یہودا 2000 سال پہلے باٹنی کی بات کر رہا ہے. اور 4 باتیں بتائی ہیں اس نے ان خادموں کے بارے میں جن کے پاس خدا کا کلام نہیں ہے, جو جھوٹے اساتذہ ہیں. پہلی بات, یہ موسم خزاں کے پادری ہیں. ان پر بہار نہیں ہوتی. یہ ہر وقت سڑے ہوئے رہتے ہیں, ہر وقت کھجے کھجے رہتے ہیں, کیونکہ ان کی زندگی میں خوشی نہیں, ان کی زندگی میں کلام نہیں, ان کی زندگی میں خدا نہیں. ہیں تو خادم لیکن یہ موسم خزاں کے پادری ہیں. لکھا ہے یہ پت جھڑ کے پادری ہیں. پھر بے پھل, ایسے پاسبان جن کی زندگی میں بھی پھل نہیں ہے, جن کی زندگی کے وسیلے سے بھی پھل نہیں ہے. مقدس یہودا ایسے اساتذہ کو جھوٹے اساتذہ کہہ رہا ہے. وہ 2 طرح سے مردہ ہیں. ایک وہ روحانی طور پر بھی مردہ ہے, ایک وہ جسمانی طور پر بھی مردہ ہے. نہ ان کے پاس جسمانی خوشی ہے, نہ ان کے پاس روحانی خوشی ہے. اور چوتھی بات, یہ جڑ سے اکھڑے ہوئے ہیں, یعنی ان کی جو روٹس ہیں وہ نہیں ہیں. اب میں باٹنی کی بات بتانے لگا ہوں. کیا ہے باٹنی میں؟ یہ ہے
कि जब कोई पौधा आप जमीन पर लगाते हैं तो जमीन में से नमकियात मिनरल्स जो हैं वो पौधे में आगे तने में आते हैं, और तने में एक क्लोरोफिल मादा है जो तने में जमा होके वो टहनियों में और पत्तों में चला जाता है, और जो क्लोरोफिल होता है वो पत्तों में जब नजर आता है तो पत्ते ग्रीन हो जाते हैं। ये ग्रीन रंग का मादा होता है जो ट्रेवल करता है, जड़ों से शुरू होता है और वो तने से होता हुआ टहनियों में और पत्तों में चला जाता है, जिसको क्लोरोफिल कहते हैं, जो सरसब्ज और शादाब कर देता है। और दरख्त जो है वो अच्छे अच्छे लगते हैं। बहार, मौसम बहार में ये अक्सर नए पत्ते जो निकलते हैं वो क्लोरोफिल की तरसील जो होती है उसमें से निकलते हैं। अब यहां यही बता रहा है कि ये वो खुदाम हैं जिनकी जड़ें कलाम में नहीं हैं, इनकी जिंदगी कलाम में नहीं है। कलाम से क्लोरोफिल निकलता है, कलाम से एक मटीरियल निकलता है जो रूहानी मादा है, वो हमारे जिस्म में अंदर जाता है तो हम हरे भरे नजर आते हैं, हमारा काम नजर आता है, हमारी जिंदगी में खुशी नजर आती है। और बॉटनी की मिसाल देते हुए मुकद्दस यहूदा कहता है कि जो बहार के पादरी हैं उनकी जिंदगी में बहार होती है, उनकी जिंदगी में फल होता है, वो जिंदा होते हैं, मुर्दा नहीं होते, और वो जड़ों से मजबूत होते हैं। ये उन खुदाम की बात है जो खुदा के खादम हैं। लेकिन जो इबलीस के खादम हैं, जो खुदा के खादम नहीं हैं, जो टुक्कर को फाल लगाए हुए हैं, जिन्होंने रोटी को अपना ओढ़ना बिछौना बना लिया है, उनके बारे में मुकद्दस यहूदा चुप नहीं रहा। उसने कहा है ये मौसम खजां के पादरी हैं, इनके ऊपर बहार ना आई है ना आएगी, क्योंकि इनके अंदर फल नहीं है। ये दो तरह से मुर्दा हैं। क्यों? क्योंकि एक तो ये सूख गए हैं और एक इनको जड़ से उखाड़ दिया गया है। ये दो तरह से मुर्दा है और ये इनकी जड़ नहीं है। सो ऐसे खुदाम को मुकद्दस यहूदा ने बेफल के दरख्त कहा है। फिर उसके बाद समुंदर की मिसाल देने लगा है। ये समुंदर की पुरजोश मौजें हैं जो अपनी बेशर्मी की झाग उछालती हैं। समुंदर की मौजें, ये 8वीं तशबीह है। अब समुंदर की क्या बात है? समुंदर में, ये स्टडी मैं बताने लगा आपको, समुंदर में जब तुगयानी आती है, जब समुंदर में सुनामी आता है, जब तूफान आता है, तो क्या होता है कि तूफान जब निकलता है तो वो इर्द गिर्द की बस्तियों को तबाह कर देता है। क्योंकि अगर आप यसाया 57 बाब की 20वीं आयत देखें तो वहां पर समुंदर को अच्छे नाम से नहीं जाना गया, समुंदर को मौत के नाम से गर्दाना गया है, शरीर के नाम से गर्दाना गया है। आज समुंदर को हम सैरगाह समझते हैं, तफरीही मकाम समझते हैं। ये 21वीं सदी की बात है। लेकिन बाइबल मुकद्दस में अगर जाएं, यसाया 57 बाब की 20वीं आयत में, वहां समुंदर को अच्छी बात नहीं है। और अगर आप जाएंगे मकाशवा 21 बाब की पहली आयत में, तो वहां जब ईमानदार होंगे वहां समुंदर नहीं होगा। यहां लिखा है और वहां समुंदर ना था। क्योंकि समुंदर जो है आज हमने जगराफियाई तौर पर इसे तफरीही मकाम बना दिया है, लेकिन समुंदर जो है वह मौत का सबब बनता रहा है। समुंदर में जो तुगयानी आती है, सुनामी आते हैं, तूफान आते हैं, वो माजी में उन्होंने तबाही बर्बादी की है। और क्या होता है जब समुंदर तबाही करके वापस आ जाता है समंदर, तो उसके बाद उसके आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं। जैसे जल्जलों के बाद छोटे छोटे झटके आते हैं, समुंदर में छोटे छोटे झटके जो आते रहते हैं, और समुंदर की लहरें जो है वो किनारे से लगती हैं, और जो किनारों के ऊपर जो लकड़ी जमी होती है उनके ऊपर झाग जम जाती है, वाइट वाइट सा होना शुरू हो जाता है। मैंने खुद देखा इसे। और वो यहां पर मुकद्दस यहूदा ने उस नक्शे को यहां बयान किया गया है। यहां बताया गया है कि ये समुंदर की पुरजोश मौजें हैं जो अपनी बेशर्मी की झाग उछालती हैं। यानी वो सारों को तबाह करके अब वो बेशर्मी की झाग, ये झूठे असातिज़ा को कहा गया है। ये जब कलीसियाओं को तबाह करते हैं, तकसीम होती है,
तो फिर बाद में अपने दोस्तों के साथ मजाक करते हैं, हंसी मजाक करते हैं और वो बेशर्मी की जाग उछालते हैं। वो कलीसिया के मजाक बनाते हैं, कलीसिया की तबाही पर हंसते हैं, और ऐसे लोगों को मुकद्दस यहूदा ने कंडेम किया है। आखिरी तशबीह, ये वो आवारागर्द सितारे हैं जिनके लिए अब तक बेहद तारीकी है। ये वो आवारागर्द सितारे हैं। अब ये एस्ट्रोलॉजी है। मुकद्दस यहूदा ने एस्ट्रोलॉजी का मुताला किया है और यहां वो बड़ी तफसील से बता रहा है। और जब मैं ये लिख रहा था तो मुझे भी निज़ाम शमसी का मुताला करना पड़ा। मैंने भी उसको खूब पढ़ा, जिसमें से चंद मैं टिप्स आपको देने लगा हूं। क्योंकि अगर हम देखते हैं कि निज़ाम शमसी में, क्योंकि मुझे देखना पड़ा कि क्या आवारागर्द सितारे हैं भी हैं कि नहीं है निज़ाम शमसी में। जब मुकद्दस यहूदा ने कहा है कि ये जो फॉल्स टीचर हैं ये निज़ाम शमसी के आवारागर्द सितारों की तरह हैं, तो मुझे ये ढूंढना पड़ा, रिसर्च करनी पड़ी कि क्या आवारागर्द सितारे हैं भी हैं या नहीं हैं। और निज़ाम शमसी का मैं नक्शा आपको देने लगा हूं। निज़ाम शमसी में कहा जाता है कि एक सितारा है और 8 सैयारे हैं, 5 बोने यानी छोटे सैयारे हैं, 290 चांद हैं, 1.3 मिलियन सियारचे जो सियारों के छोटे होते हैं जो मूव करते रहते हैं, 1.3 मिलियन यानी 13 लाख के करीब। फिर उसके बाद तकरीबन 3900 दुमदार सितारे यहां मौजूद हैं और तकरीबन 300 अरब के करीब जो अजराम फल्की हैं वो कायनात में मौजूद हैं, जो हाइड्रोजन और हेलियम से बने हैं, जो हरारत और रोशनी का सबब बने हुए हैं। अब इनमें हम देखते हैं कि कुछ ऐसे सितारे हैं जो मुस्तहकम होते हैं और कुछ ऐसे हैं जो गैर मुस्तहकम होते हैं। इनको देखना है। मुस्तहकम सितारे जो होते हैं वो निज़ाम शमसी का हिस्सा होते हैं। जो पॉइंट मैं बताने लगा वो ये है कि मुस्तहकम सितारे और गैर मुस्तहकम सितारे, मुस्तहकम वो होते हैं जो सिस्टम में होते हैं और ये सूरज को मिला के 9 हैं जिनको अपने अपने मदार में रखा गया है और ये अपने अपने मदार में सूरज के गिर्द घूमते हैं। सूरज भी घूमता है लेकिन सूरज की जो मूवमेंट है वो लट्टू की तरह है, लेकिन इनकी मूवमेंट ऐसे है, सितारों की मूवमेंट ऐसे है जिसमें हमारी जमीन भी शामिल है। सो ये अपने अपने मदार में घूमते हैं। ये अपने मदार से जब हट जाएंगे तो ये निज़ाम शमसी से बाहर चले जाएंगे और वो तबाह हो जाएंगे। सो ये जो 9 सितारे हैं ये निज़ाम शमसी यानी खुदा के हुक्म की तामील कर रहे हैं, ये सिस्टम में हैं। इनको कहते हैं मुस्तहकम सितारे। ये अपने अपने मदार में अपनी अपनी जगह पर अपना अपना काम कर रहे हैं। अब उसके बाद है गैर मुस्तहकम सितारे जो निज़ाम शमसी में मौजूद तो हैं लेकिन निज़ाम का हिस्सा नहीं है। निज़ाम का हिस्सा नहीं, उनको कहते हैं गैर मुस्तहकम सितारे, जिनका जिक्र मुकद्दस यहूदा ने यहां किया है। ये गैर मुस्तहकम सितारे जो हैं ये कायनात में फिरते रहते हैं। ये बड़ी तादाद में है, लाखों में है, ये लगते रहते हैं और क्योंकि ये सिस्टम में नहीं है सो ये आपस में झगड़ पड़ते हैं, ये आपस में वहां लड़ाई हो जाती है इनकी और आपस में टकरा जाते हैं। और कभी जिंदगी में मैंने एक्सपीरियंस किया है, अब तो शहरों में शायद ऐसा नहीं है, गांव में अगर आप जाएं तो रात को बाई चांस एक बड़ी रोशनी ऊपर से गिरती है और एकदम से वो खत्म हो जाती है। तो मैंने ये खुद देखा हुआ है कि अचानक बड़ी रोशनी तेज ऐसे गिरती है और खत्म हो जाती है। ये वो आवारागर्द सितारे हैं जो हमारे निजाम का हिस्सा नहीं है। क्योंकि निजाम का हिस्सा नहीं है, ये खुदा के भी ताबे नहीं है, चाहे उसी ने बनाए हैं। ये वो नाफरमान सितारे हैं जो खुदा की ताबेदारी में भी नहीं है और खुदा के सिस्टम में भी नहीं है। ऐसे सितारों के साथ तशबीह दी है झूठे असातिज़ा को। झूठे असातिज़ा हमारी कलीसियाओं में तो मौजूद हैं लेकिन कलीसियाओं के निजाम में फिट नहीं है। वो खुदा के भी ताबे नहीं है, ना ही वो किसी कलीसियाई निजाम के ताबे हैं। और ऐसे लोगों को मुकद्दस यहूदा ने ऐसे सितारों का नाम दिया है जो आवारागर्द सितारे हैं। ये आपस में टकराते हैं,
रोशनी होती है और इनकी आकबत हमेशा हमेशा के लिए दोज़ख है। एक मसीही आलम है, वो कहता है कि मैं एक वक्त में दोज़ख में चला गया, खुदा से कहा मैं दोज़ख दिखा, तो मैंने देखा वहां बड़े बड़े पहाड़ हैं जो आग से जल रहे हैं। तो मैंने पूछा कि ये पहाड़ क्यों यहां बनाए हुए हैं? उन्होंने कहा ये वो आवारागर्द सितारे हैं जो आसमान पर झगड़ पड़े और उनकी सजा यहां है, ये सारी उम्र आग से सुलगते रहेंगे। ऐसे असातिज़ा जो खुदा के कलाम और खुदा के इंतजाम के मुताबिक नहीं है, मुक़द्दस यहूदा ने इन पर अफसोस किया है, उनकी हलाकत पर अफसोस किया है। और ऐसे जो असातिज़ा हैं उनको काइन से, बहूर के बेटे बलाम से, कोरा से, पोशीदा चट्टानों से, बेधड़क अपना पेट भरने वाले चरवाहों से, बेपानी के बादल से, पतझड़ बेफल दरख्त से, और समंदर की पुरजोश मौजों से, और आवारागर्द सितारों से, ये 9 तशबीहात देकर मुक़द्दस यहूदा ने ऐसे असातिज़ा की आकबत को हमारे सामने रखा है कि अगर हम में से कोई ऐसा उस्ताद है जो बाइबल के मुताबिक तालीम नहीं देता, जो इन सितारों की मानद या इन तशबीहात की मानद है, अगर वो तौबा नहीं करेगा तो फिर मुक़द्दस यहूदा कहता है इन पर अफसोस, क्योंकि ये अबदी हलाकत को अपनी मंजिल बना बैठे हैं। हम वो सितारे हैं जो आसमानों पर दरख्शां हैं। दानियल 12 बाब में हम वो सितारे हैं जो हम दुनिया को रोशन कर देते हैं, जो हम कायनात को रोशन कर देते हैं। हम आवारागर्द सितारे नहीं हैं, हम खुदा के फजल से वो सितारे हैं जो हम कौम को रोशनी देते हैं, हरारत देते हैं, और खुदा के निज़ाम और इंतज़ाम में हम फिट हैं। लेकिन आवारागर्द सितारे वो हैं जो खुदा के निज़ाम में फिट नहीं है, खुदा और उसके कलाम की खिदमत नहीं करते, बल्कि वो अपने पेट के लिए खुदा का काम करते हैं। ये 9 तशबीहात हमें एक अच्छा खादम बनने के लिए तरगीब देती हैं और हमें उन खादमों से बचने के लिए इंतबाह करती हैं, तंबीह करती हैं कि हम ऐसे असातिज़ा से दूर रहे। इन्होंने अपनी आकबत दोज़ख में मुकर्रर कर रखी है। खुदावंद हमें अच्छा खादम बनने की तौफीक अता फरमाए। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह के नाम से।